Hi friends, welcome to Wheels to Ocean channel, and today we have a very exciting video for you. That is for the launch of Okuma T-Solo reels, which are a new development by Okuma, and this is a 2023 model, recently launched worldwide. तो देखते हैं ये वीडियो में आज क्या है और ये रील के बारे में आप क्या क्या फंक्शंस आप देख सकते हो. बाय द वे मेरे हाथ में जो ये रील है ये पेन की स्पिन फिशर एसएस रील है, मेड इन यूएस. इससे हमें जब मैंने फिशिंग चालू की तो आई यूज्ड टू फिश विद दिस. इसका वजन है 1 किलो. ओके, और तभी शायद ये ऐसे कुछ फंक्शंस थे, वो वेरी बेसिक रील्स, बिल्ड लाइक अ टैंक बट नॉट वेरी हेवीली लोडेड विद फंक्शंस. सो आज मैं इसको क्यों हाथ में होल्ड कर रहा हूँ कि जस्ट दिखाने के लिए वेयर हैव फिशिंग रील्स कम इवॉल्व इन लास्ट 20 years. टेक्नोलॉजी क्या क्या इवॉल्व हुई है और जो आज रील्स आप मार्केट में है, व्हाट रील्स यू गेट टुडे, how advanced are those compared to what I used to use 20 years back. And I have Arunava with me today, who is going to take you down with the Okuma T-Solo. This is a lineup of Okuma T-Solo reels, starting from 5,000, then the 6,000, 5,000 and 6,000 are your high gear ratio. Then you have your 8,000 and your 10,000. They are your power gear ratio. You know, for jigging, for trawling, you can use them. Then comes the 14,000 again. High gear ratio for popping with a fast retrieve, and then the big daddy, the 20,000, which you can use. आप इसे यूज कर सकते हो ट्रॉलिंग के लिए, for biggest fish, for your marlin, your sailfish, for your big tuna. Really solid reel. So Arunava, let's start. I'll keep this pen down because I think I need to upgrade now to better reels. But then the 20. No offense to pen lovers, but the technology has evolved. But since 20 years is a long time. Long time, yeah. So let's continue, Arun. We are going to go through not 1, not 4, not 5, not 10. A total 18 features. These are काफी feature loaded है. इसमें 18 features आते हैं और जो very path breaking है. Lot of amazing features, right from being waterproof to anti-corrosion और क्या क्या नहीं है. Double drag, carbon text. तो चलो चलते हैं. Let's continue. वीडियो जरूर देखिए end तक और आप चलो अरुण, over to you. Thank you, sir, for the beautiful introduction. And as you said, technology has indeed evolved. Yes. And that was one of the reasons why we are today with the Okuma new reels, T-Solo. And as rightly pointed out, sir, we have the range from 5,000, 6,000, and 8, 10, 14, and 20,000. Full range of reels. So anybody who is a serious saltwater angler, serious angler, for those people, we have got these reels today. Right. So I'll not waste time and start the video, guys, about the features as sir told me to do. Now, point number 1. All these reels you see, आप जितने भी रील देख रहे हो सब हाइड्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और IPX7 रेटिंग से बना हुआ है सर, मतलब फुल्ली वाटरप्रूफ. ये काफी कम रील्स में आता है. यस सर. इसमें होता है क्या, इसके अंदर पानी जाता नहीं है. इसको आप पानी में सबमर्ज भी करो फॉर 30 मिनट्स, इसके अंदर पानी जाएगा नहीं. सो इट्स अ ग्रेट फीचर. ये मैं फर्स्ट टाइम सुना था मोबाइल फोन में. IPS5 था. या IPS7 है सर. IPS5 इज वाटर रेजिस्टेंस. ओके. एंड IPS7 इज वाटरप्रूफ. ग्रेट. तो कभी इसमें पानी जाने की जो पॉसिबिलिटी है ये नील हो जाती है और अंदर के इंटरनल से डैमेज नहीं होंगे. तो करोजन के लिए काफी है, अंदर के इंटरनल खराब नहीं हो सकते और रील की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, प्रोलॉन्ग हो जाती है. नेक्स्ट. So the next point जो है, if you take that reel in your hand and show the viewers little bit pros and cons for angles आप दिखाएंगे उनको, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, ये एल्यूमिनाइट फ्रेम जो है, इसका जो रील का जो फ्रेम है, पूरा मेन जो फ्रेम है, दैट इज एल्यूमिनाइट. ओकुमा का प्रॉपर्टी एक मेटल है, एक उन्होंने अलॉय बनाया हुआ है जिसका स्ट्रेंथ काफी रिजिड होता है, तो रील में टफनेस बहुत है ना, बोलते हैं दमदार जानदार, बट वेट कम रहता है इसलिए. सो एल्यूमिनियम का मेन फ्रेम है. और सर पॉइंट नंबर 3 जो हम बोल रहे हैं कि इसमें जो एल्यूमिनियम का मेन जो बॉडी एंड साइड प्लेट्स ऑल मेड ऑफ एल्यूमिनियम. या सो उसके बाद हम जाएंगे सिर्फ गियर में. उसका जो मेन गियर है सर, ओवरसाइज मशीन कट जो मेन गियरिंग है, जो रील का बोलते हैं ना एकदम स्टेम है, रील का जो मेन आपका पार्ट है, मेन गियर. और इसका जो पिनियन गियर है सर, तो ब्रास 6191 ग्रेड का ब्रास का पिनियन गियर है. बिकॉज पिनियन गियर मेन गियर वर्क इन कंजुगेशन फॉर द स्टेबिलिटी. और इसमें सर गियरिंग स्टेबिलाईजेशन का डिजाइन भी ओकुमा ने दिया हुआ है ताकि इसमें जो रोटेशन के साथ जो टच रहता है हमेशा कंसिस्टेंट टच रहता है, तो एकदम फ्रिक्शन लेस आपका रोटेशन रील का. देन सर आई गो विद द रील शाफ्ट
जो रील का जो स्पूल शाफ्ट है यहाँ पे, दैट इज मेड विद टाइटेनियम बॉयज। सो टाइटेनियम उन्होंने ओकुमा ने कहां तक कमिटमेंट एंगल्स के लिए लेके गए, टाइटेनियम का वहां पे स्पूल शाफ्ट डाला है कि हैवी ड्रैग जो है सर वहां पे जब आप रील को करते हो रिट्रीव तो फ्लेक्स नहीं आना चाहिए। टाइटेनियम ये सबसे वन ऑफ द सबसे महंगा मेटल है। ये जो हम लोग के एयरक्राफ्ट है, जो सुखाई एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स जो करता है, उसके जो कुछ पार्ट्स है जो वेर एंड टेयर मैक्सिमम होता है, उसमें टाइटेनियम यूज करते हैं, और वो टाइटेनियम हम लोग के यहाँ पर रशिया से आता है। उस मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर आप थोड़ा स्पूल का ड्रैग दिखा देंगे सर। ये जो रील्स है इसमें DFD है, डुअल फोर्स ड्रैग सिस्टम, आगे भी ड्रैग के वॉशर्स है, पीछे भी है, और कार्बन टेक्स के वॉशर है सर। तो और विद काइल्स ग्रीस, तो इसका जो इसमें एक और एक आता है, हर रील के साथ में आपको ये ग्रीस मिलेगा। ये कैल ग्रीस है। आपकी जो कार्बन टेक्स ड्रैग्स है, योर कार्बन टेक्स ड्रैग्स शुड बी ओनली अप्लाइड विद कैल ग्रीस। उसको और ग्रीस नहीं लगता है, नो अदर ग्रीस बट ओनली कैल ग्रीस। तो कार्बन के साथ में कैल ग्रीस अप्लाई होता है। तो साथ में ये भी दे रहे हैं हर रील के साथ। हर इक्वल फोर्स ट्रैक में एक भी होता है, दोनों साइड में ड्रैग होता है ना, तो दोनों ड्रैग के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत यूनिफॉर्म हो जाता है, एक पे पूरा प्रेशर नहीं आता। तो आउटपुट कंसिस्टेंट रहता है और वो स्मूथ ड्रैग प्रोसेस को ऑलवेज इंश्योर करता है कि ड्रैग कभी अटके ना, अटक के जाता तो फिश प्ले करने में दिक्कत हो जाता है। देन हम बात करेंगे इसका जो ड्राइव टेक्नोलॉजी है, फ्लाइट ड्राइव, उसमें जो ओकुमा ने बीच में है ड्राइव शाफ्ट जो है उसमें होलो कोर किया है, तो इसका स्टार्टिंग इनर्शिया क्लोज टू 0 हो जाता है, तो फ्रिक्शन लेस आपका रिट्रीवल एक स्मूथनेस मिलता है। दीज आर ऑल हैवी ड्यूटी रील्स, मतलब हैवी ड्यूटी रील्स में वो उतना फ्रिक्शन को कम करना, वो फील देना लाइट वेट वाला रील का, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो इसी का यही यूज है। तो सर ये जो टेसोरो सीरीज ऑफ रील्स में ओकुमा ने जो गियरिंग दिया है सर, 12+1 सील्ड हाई परफॉर्मेंस स्टेनलेस स्टील के बॉल बियरिंग्स हैं। corrosion resistance है सर 12+1, वन इज एंटी रिवर्स बियरिंग, तो कि इंश्योर करता है बिल्कुल बैक रोटेशन को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता है। सॉलिड हुक सेट्स एंड सॉलिड रिट्रीव, नो प्ले। ये उसमें ये फंक्शन है, देखो पुरानी हाँ, ये नहीं होगा सर। तो ये अरुण सर ऑल्सो सील्ड बेयरिंग्स। हाँ सर। हाँ, तो उसमें सॉल्ट वाटर जाने का चांस बिल्कुल नहीं है। Not only high performance, but they are also sealed. आपको बता दूं ये रील में इंटरनल और एक्सटर्नल corrosion रेजिस्टेंस कोटिंग दिया हुआ है ओकुमा ने, ताकि सॉल्ट वाटर यूज में, क्योंकि ये सीरियस सॉल्ट वाटर रील है, तो सॉल्ट वाटर यूज में आपका जितना भी सॉल्ट वाटर का एक्सपोजर हो उसमें corrosion का चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट करता है वो। ओके सर, इसके बाद हम बात करेंगे इसका लाइन रोलर के ऊपर टेक्नोलॉजी जो है। सर आप दिखा सकते हैं यहाँ पे जो लाइन रोलर है इसमें EFR2 टेक्नोलॉजी है, और साथ में एक डायमंड लाइक कार्बन का कोटिंग है यहाँ पे, तो जो कि फ्रिक्शन लेस लाइन यहाँ पे फ्री एंट्री होती है और यहाँ से निकलती है, जो कि टेक्नोलॉजी काफी हाई एंड रील जैसे शिमानो स्टेला में होती है। ये ओकुमा ने यहाँ पे तरह का दिया है, उसमें स्मूथली लाइन निकलती है, उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा, लाइन का लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाता है, लाइन खराब नहीं होता है, बिल्कुल फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो कि हेवी ड्रैग्स में आप खेलने वाले हो, हेवी फिश को आप टैकल करोगे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत लाइन का लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगी और ओवरऑल फिशिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने वाले हैं। सो सर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे इसके ऊपर, इसका जो बेल वायर है, जो बेल वायर है वो एल्यूमिनियम का हाई HD बोलते हैं, मतलब हेवी ड्यूटी 1 पीस एल्यूमिनियम का वायर है उसमें। तो और इसके साथ इसमें मैनुअल ट्रिप है, तो ऑटो ट्रिप होगा नहीं। तो इसके बारे में प्लीज आप एक्सप्लेन कर देंगे तो थोड़ा। तो मैनुअल ट्रिप क्या होता है, ऑटो ट्रिप क्या होता है? काफी टाइम में देखा होगा कि आप कास्ट करते हो और लोग ऐसे हैंडल घुमा लेते हैं। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, ऐसी फिशिंग नहीं की जाती है। नॉर्मली बेलाम को क्या करते हैं, कास्ट करने के बाद जब आपका ल्योर पानी में ड्रॉप होता है, आप उसको हाथ से बंद करके फिर रिट्रीव करते हैं। इसका एडवांटेज अभी ये करने से तो बेलाम खराब नहीं होता है। दूसरी चीज है जिसमें ये फंक्शन नहीं है, तो कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, ये आइडियली आप कास्ट कैसे करते हैं, हाउ डू यू कास्ट, यू हैव टू अलाइन योर रूलर टू योर रॉड, ये ऊपर चाहिए, फिर आप बेलाम ओपन करते हैं, उसके ट्रिप होने के चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे टाइम मैंने देखा है, और शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लोग कहीं से भी इसको ओपन कर लेते हैं और फिर कास्ट करते हैं। उसमें होता है क्या है, कभी कभी ये बेल आपका जो है वो ट्रिप हो जाएगा बेलाम, और फिर अगर आपका हैवी पॉपर है, हैवी लेयर है, तो वो ट्रिप होने से आपका जब भी कास्ट कर दो, आपका यहाँ लाइन टूटने का चांस होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी आप फिशिंग करके देखा होगा कि किसी का लेयर वो फ्लाई ऑफ हो गया, लाइन बर्स्ट ऑफ हो गया, क्योंकि बेलाम ट्रिप हो गया। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ये टर्न नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या, बहुत सारे टाइम में जब आप कास्ट करते हैं, आपने प्रॉपर किया होगा, आपका ये स्पूल टर्न हो जाता है, वो टर्न होते ही ये ट्रिप होगा। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर, ऑटो ट्रिप प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन दिस रील। या सो कंटिन्यू। सो सर इसके बाद हम बात करेंगे इसका जो स्पूल है, मशीन कट एल्यूमिनियम का 2 टोन इसका
जो है स्पूल है, और सर स्पूल इज ब्रेड रेडी। आप दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, इसके अंदर नॉर्मल रील्स में जो ब्रेड रेडी बोलते हैं उसमें रबर का रहता है आपका उधर प्रोटेक्टिव, यहाँ पे मेटल का उन्होंने ग्रुप दिया हुआ है, तो ब्रेड में जब नॉट मारते हो वो स्लिप होने का चांसेस बिल्कुल कम है। और ये स्पूल में कट्स भी है, दैट मेक्स इट स्पूल लाइटर, Yes. वेट सेविंग है, Yes. एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग, यू नो लुक है इसका। जो आप कलर स्कीम देखिए सर। हैंडल भी देखेंगे, एक अलग फ्यूचरिस्टिक हैंडल है, बहुत ही प्यारा नॉब है, अमेजिंग स्पूल, वेरी ब्यूटीफुल। आगे का ड्रैग नॉब भी वो भी सिल्वर ब्लैक में है, बहुत अच्छा है। और रील का मेन कलर स्कीम सर क्या है? ब्लैक एंड गोल्ड। ओह आई लाइक दिस। और ये ये जो कट है ना, कट है, बहुत Yes. प्यारा है हैंडल, इज अमेजिंग हैंडल, ब्यूटीफुल रील। सर हैंडल है आपका पावर हैंडल ऑफ कोर्स, yes. एंड पावर नॉब के साथ इनबिल्ट आता है, और मशीन कट एल्यूमिनियम है, कोई डाई कास्ट हैंडल नहीं है इसका, Right. फुल्ली मशीन कट हैंडल है, पावरफुल एकदम तगड़ा, ब्रेकेज के चांसेस नो एलिमिनेट करता है वो। राइट। और सर अभी ये इसके जो जितने भी सारे हमारे पास 5000 से लेके 20,000 तक हमने जो कवर किया है, ईच एंड एवरी रील का हम लोग बताएंगे ड्रैग कितना है, लाइन कैपेसिटी कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस बताएंगे जरूर, Right. प्लीज देखते रहिए, लेट्स कंटिन्यू। तो सर आपके हाथ में 5000 साइज का रील है, और ये 5000 साइज का जो रील है इसका वजन आएगा आपको 449 ग्राम दोस्तों। तो 450 ग्राम का नीचे का ये रील आएगा 5000 साइज का। इसका ड्रैग है 15 किलो, और जैसे हमको पता है, पहले ही बताया 5000 इज अ एक्से रील, मतलब 6.2:1 गियरिंग रेशियो सर। सो अराउंड दिस इज अराउंड 13-14 आउंस का ये रील है, यस सर। 450 ग्राम का है। ये आइडियली परफेक्टली बैठेगा आपके 8 फीट रॉड पे, सुपरबली बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई 8 फीट रॉड है, 9 फीट रॉड है, बहुत प्यारा उस पर बैलेंस हो जाएगा ये रील। सर ये रील कहाँ आप रिकमेंड करेंगे यूज करने के लिए, मतलब यूज कहाँ, कौन से फील्ड में? इंश्योर, परफेक्ट फॉर इंश्योर फिशिंग, लाइट बोट फिशिंग, इंश्योर फिशिंग के लिए बहुत प्यारा रील है, अमेजिंग। व्हाट्स द ड्रैग अराउंड इसमें? सर 15 किलो। 15 किलो है, 33 एलबी ड्रैग है इसमें, विच इज बाय नो मीन्स कम है। हम लोग 15 केजी ड्रैग यूज नहीं करते नॉर्मली, दिस इज अ ग्रेट ड्रैग कैपेसिटी फॉर दिस साइज ऑफ रील। यस सर। नेक्स्ट सर प्राइस अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे सर? प्राइस हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। Okay, sir. So next we'll take the 6000 reel in hand, and we will talk about the line capacity and drag. Again, it's a 6000 size XA model, 6.2:1 gearing ratio है सर, Nice. और इसका वजन आएगा 450 ग्राम्स, और इसका भी ड्रैग 15 किलो है। Right. और ये जो रील है सेम यूजर है, जिनको थोड़ा लाइन कैपेसिटी ज्यादा चाहिए वो 5000 साइज में 0.3 mm का ब्रेड लाइन आएगा, 240 मीटर्स, 240 मीटर्स 5000 साइज में आएगा 0.3 mm का, और 6000 साइज में आपका 0.3 mm का 310 मीटर्स आएगा। More than enough. 300 मीटर, काफी अच्छा लाइन कैपेसिटी। Yeah. वेरी गुड लाइन कैपेसिटी। Yes, sir. And then we'll move to 8000 साइज। 8000 साइज जैसे पहला डिफरेंशिएट होगा सीरीज से, ये दोनों एक से थे, 6.2:1 था, और यहाँ पे हम आ गए 8000 में, जिसका आएगा 4.9:1। सो गाइज, जो आपका हाई गियर रेशियो है इज आइडियल फॉर स्पिनिंग, वर्किंग पर्पस। अगर आपको सरफेस प्लग्स यूज करने हैं, आपको एक पर्टिकुलर एक्शन देना है, तो उसके लिए आपको को हाई गियर रेशियो चाहिए, ताकि आप लाइन उससे फास्ट कलेक्ट करो। ये आपका जो पावर गियर रेशियो है, इट इज आइडियल फॉर आप बोट फिशिंग करते हैं, आपको ट्रॉलिंग करना है, अगर आपको जिगिंग करना है, तो आप जब भी जिगिंग करते हो तो आपको लगता है स्लो गियर रेशियो, तो ये आइडियल जिगिंग रील है, आइडियल ट्रॉलिंग रील है। अगर आपको हैवी फिशिंग भी करनी है नॉर्मली, अगर आपको प्लग्स यूज करने हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली दिस इज आइडियल फॉर योर ट्रॉलिंग एंड योर जिगिंग पर्पस। Also on that note, sir, I'll update you on the drag. From 8000 to 20,000, drag changes to 25 kilos. 25 kilos. 25 kilos. That is more than 50 pounds, 55 pounds. I don't think हम लोग में से कोई इतना ड्रैग यूज कर पाएगा। You have to become fitter then. Anyways, मालूम पड़े आपको 25 किलो ड्रैग लगा तो आप पानी के अंदर हो। so on a serious note, we'll go for the reel weight. Reel weight is 697 grams. Very nice. और इसका लाइन कैपेसिटी आएगा सर 0.4 mm का, आएगा 230 मीटर्स, 0.4 mm 230 मीटर्स। So around अगर हम 0.35 जो नॉर्मली हम ट्रॉलिंग यूज करते हैं, तो उसमें 350-350 लाइन आ जाएगा इजीली। मोर देन दैट, दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर ट्रॉलिंग नीड्स, फॉर योर जिगिंग नीड्स। अगर आपको जिप करना है, आपको 150 ग्राम 200 ग्राम 100-150 मीटर में आपको जिग करना है, आई थिंक परफेक्ट रील। On that note, we'll give another options to those people who want to exactly do that. Go bigger and So, go deeper. Yes. So we'll go to the size 10,000. 10,000. Again, same reel with a similar gear ratio 4.9:1, और इसका वजन आएगा सर 714 grams. Okay. Again 25 kilo of drag, and then the line capacity changes 0.40, 290 meters.
तो इसके लिए आइडियल चीज होगी, आप इससे ट्रॉलिंग कर सकते हैं वेरी कंफर्टेबली, स्टॉप एनी फिश जो हम लोग कोस्टल वाटर्स में, जब मालवण जाते हो, आप जयगढ़ जाते हो या कहीं पर भी आपको अंडमान लक्षद्वीप में एक मीडियम सेटअप के साथ आप जो आपके रॉड है 30-50 एलबी रॉड है, 50-60 एलबी रॉड है, उसके रॉड्स के लिए परफेक्ट मैच होगा फॉर योर ट्रोलिंग पर्पस। अगर आपको उसको जिगिंग करना है तो इसके लिए P6 जिगिंग रॉड, ये इसमें बहुत अच्छा बैलेंस होगा फॉर योर P6 जिगिंग rods. This will be the ideal reel to be used. So basically, you're suggesting Andaman, Lakshadweep, all those Lakshadweep, big game. all those big game, even for trolling in Malvan, this can stop any surma, any grouper that you may encounter. And also for Andaman, 200 ग्राम 250 ग्राम जिग जो आप यूज करोगे 150-200 मीटर वाटर में, 150 मीटर वाटर में, तो आई थिंक इसके लिए परफेक्ट P6 रॉड के साथ परफेक्टली ये पेयर अप होगा, परफेक्टली फॉर P6 रॉड्स। Okay, sir, we'll break that chain. Now we'll go for a different Popping. type of reel. Yes, sir. This is the Tesoro 14,000. Again, this is a high gear reel. 5.8:1 is the gearing ratio, sir. And yes, the drag smooth looks very nice and So, very nice. What I like the most about it, ये जो रेंज है, ये आपको अगर ये बिल्ड क्वालिटी में एक ही रील है, वो है सारागोसा, जो आपको ये रेंज देती है, और फिर ऑफ कोर्स हाई एंड में स्टेला है आपके पास में, बट हैंड्स डाउन। बट आई थिंक फंक्शन वाइज दिस इज अ लॉट वैल्यू फॉर मनी। आई डोंट थिंक, आई एम पर्सनली वेरी प्लीज, मेरे को बहुत खुशी है कि इतने अच्छे वैल्यू में ये रील अवेलेबल है, एंड ऑल दिस रेंज फ्रॉम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 14,000 राइट टिल 20,000। तो सुपर बैरून, प्लीज कंटिन्यू। या सर, इसका ड्रैग अगेन 25 kilos दैट विल नीड फॉर पॉपिंग। जो फिट लोग हैं उनके लिए 25 किलो। Yes, of course you are fit, sir. नहीं तो मैं मार खाऊंगा anyways. So 5.1:1, 5.8:1, and then overweight of the reel would be 714 grams, 25 kilos of drag, 0.40 का जो braid line है वो बैठेगा 370 meters. So ideally you can go P8 line, P8 line अगर पॉपिंग करना है तो उसमें P8, P6, P8 आइडियल लाइन कैपेसिटी इसकी तो उसमें आएगी करीब 300 मीटर, विच इज वे मोर इनफ फॉर यू फॉर पॉपिंग। आप इसमें बेशक P8 रॉड आइडियल होगा, P6 टू P8 रॉड पॉपिंग रॉड इसके लिए, एंड परफेक्ट रील, परफेक्ट फॉर अंडमान, लक्षद्वीप, Malvan, for big GTs, perfect for poping reel, superb. Yeah. So I'll let you do the closer. The big daddy, the big boy should speak about this. The 20,000 Tesoro, Dada. Please tell them about the drag, line capacity, everything. Over to you, sir. This is ये 20,000 साइज रील है, और इसमें अगर हम लोग 0.40 डालते हैं, अराउंड से अबाउट 60 LB लाइन इसमें करते हैं, या 80 LB डालते हैं, तो उसकी लाइन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्लोज टू मोर देन 300 मीटर्स, 400 मीटर्स। अगर आप उसमें और थोड़ी कम 0.35, 0.40, आई थिंक 0.40 की इसमें लाइन कैपेसिटी है, दिया हुआ उन्होंने रेटिंग करके दिया है, 0.5 का रेटिंग है, तो इसमें P5 का इसमें आएगा आपको 665 मीटर्स। That's staggering. Yeah, so good quality PE5. Normally PE5 होगा 50 pound, but good quality आप PE5 लेते हैं, that would be close to at least 75 pound, 65 to 75 pound, which is way more enough. अगर इसमें 600 मीटर अगर आप 65 पाउंड की लाइन डालते हैं, तो आई थिंक ऐसे कोई फिश नहीं है जिसको आप इसमें रोक नहीं सकते। यू नो, अमेजिंग कैपेसिटी, बहुत सुपर कैपेसिटी है। 65 LB ब्रेड, 600 मीटर के ऊपर एनी सेल फिश, एनी टूना, एक छोटा मार्लिन 150-200 किलो का मार्लिन ये जरूर रोक पाएगी रील। दिस इज द आइडियल रील, और आई डोंट थिंक कि हाँ, मेरे एक दोस्त एक बेट लगा है, एक जगह जाके बहुत बड़े ग्रुप है, मैं इसे ले जाऊंगा। ओके सर, ऑल योर्स। Brilliant reel, value for money again, perfect drag, 25 kilo drag, great line capacity, great looking reels with loaded with feature. तो वेट्स बता दो, 20,000 का वेट कितना आएगा सर? रील का वेट कितना? 1 किलो। 1 किलो? नहीं, थोड़ा सा कम लगता है मुझे। 928 सर। 928 में थोड़ा सा पास में। Yes. So 928 grams, perfect reel, इसको आप। By the way, एक चीज है, it comes with amazingly beautiful packing। तो इसके पैकिंग आपको एक बार से दिखा देता हूँ मैं। तो अंदर ये रील पूरे इस तरीके से फिट होती है। मैंने ऐसी पैकिंग बहुत कोई देखी नहीं, इसकी जैसी पैकिंग इतनी अच्छी। ये आपको उसके साथ में आपको ये कैलग्रीस आएगा, एक स्पूल बैंड आता है, और आपका जो ये नॉब है, नॉब का जो स्क्रू है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ट्यूबिंग आती है। जब भी आप नॉब निकाल लेते हैं, इसका हैंडल निकाल लेते हो, तो आप इसके स्क्रू में इसको ये ट्यूबिंग को लगा सकते रख सकते हो, तो आपकी सेफ्टी, वो कभी उसकी थ्रेडिंग खराब नहीं होगी। सो ब्रिलियंट पैकिंग, आई रियली लव द पैकिंग। एंड लेट्स गेट टू द प्राइस। वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
जो आप इतनी महंगी रील खरीदते हैं, आपको हमेशा अच्छी फिशिंग करनी होती है, लेकिन कभी कुछ भी खराब हो सकता है रील में आपसे, या रील गिर सकती है, या इंटरनल कुछ खराब हो सकता है, मशीन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक गुड न्यूज है आपके लिए, इसके सारे स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, सर्विसिंग अवेलेबल है, तो आप रील कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हैं। उकुमा के सारे पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल है, तो आपका कोई भी सामान कभी भी खराब होगा, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी डू द नीडफुल फॉर। ये था इंट्रोडक्शन टू उकुमा टीसीरो रील्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपको कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए इंफॉर्मेशन में, इसके साथ में उसकी प्राइसिंग भी हमने दी हुई है, तो काइंडली गो थ्रू द प्राइसिंग ऑल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कोई और जानकारी चाहिए, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस भी नीचे दिया गया है, हमारे फोन नंबर्स है। सो एनी टाइम एनीथिंग दैट यू नीड, वी आर देयर टू हेल्प यू। गाइस, रिव्यूज दीजिए वीडियो के बारे में, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड subscribe to our channel. Thanks for watching, and wish you a very happy Christmas and a very happy New Year. Thank you so much. Bye bye. Thank you.